المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس طریقے سے میں آپ حضرات کو درود مبارکہ پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر عشق و مستی میں ڈوب کر بآواز بلند پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مدرسے فیضان مخدوم میں ہمارا جمع ہونے کا مقصد ہے کہ جشن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا گیا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی اگر کوئی ذات ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا عرفہ والا ہے کہ ہماری زبان اسے کیا بیان کرے۔ حصول برکت کے لیے کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت بھی آپ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ سوچنے والی بات ہے کہ ہر طرف کفر کا ماحول ہے، شرک کا ماحول ہے، بت پرستی عام ہے، ایسے ماحول کے اندر بھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، یہاں تک کہ آپ کے والد نے ایک دن آپ کو کمرے میں بند کر دیا جس کے اندر کئی جو بت تھے، تو آپ نے ان بتوں سے کہا کہ میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑے دو، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، تب بھی کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے کہا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ، تب بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تو آپ نے کہا یہ بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یہ باطل ہے، آپ نے سب توڑ دیے۔ آپ کے والد نے جب دیکھا دروازہ کھول کر تو بہت ناراض ہوئے، لیکن آپ کی والدہ نے سمجھایا کہ ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ عرب میں شراب عام تھی، عرب لوگ جو تھے نا یہ شراب بہت پیا کرتے تھے، کوئی پارٹی، کوئی شادی، کوئی فنکشن، کوئی خوشی کا ماحول تو شراب عام، ان کے گھروں کے اندر باقاعدہ شراب سجا کر رکھی جاتی ہے، جو جتنا زیادہ رئیس ہوتا اس کے پاس اتنی زیادہ شراب نہیں ہوتی، بغیر شراب کے کوئی دعوت نہیں ہوتی ان کی، کتنی شراب عام۔ اب سوچیں کہ اس ماحول کے اندر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی، یہ کمال ہے آپ کا۔ نہیں تو آپ دیکھیں کہ انسان کی فطرت ہے، جن کے ساتھ بیٹھے گا اس پہ ویسے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ شرابی کے ساتھ بیٹھے گا انسان تو شرابی بنے گا، جواری کے ساتھ بیٹھے گا تو جواری بنے گا، اسی طریقے سے چور اچکوں کے ساتھ بیٹھے گا تو چور اچکا بنے گا، ڈرگس، نشہ، افیم، اینڈی وغیرہ پینے کھانے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ویسا ہی بنے گا۔ یعنی انسان کی یہ فطرت ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھے گا اس کے اندر ویسی عادتیں آنی
लाजमी है कि इंसान वैसा हो जाता है। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाओ आपकी जात पर कि पूरा हर तरफ शराब का माहौल है, शराब आम है, ऐसों के बीच में भी आपने कभी शराब नहीं पी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए फरमाया गया कि तुम पर अच्छों का असर हो तो अच्छों की सोबत में बैठो, इसलिए कि नमाजी की सोबत में बैठोगे तो नमाजी बनोगे, नेक लोगों के साथ बैठोगे तो नेक ही बनोगे। फॉर एग्जाम्पल फरमाया गया कि अगर कोई इत्र परोश के पास बैठता हो, है ना, इत्र परोश के पास अगर बैठता हो तो खुशबू ना भी लगाए तब भी खुशबू मैसर आ जाएगी, है ना, खुशबू आएगी या बदबू आएगी? खुशबू आएगी। और अगर इसके बरस कचरे के ढेर के पास, गंदगी के पास इंसान बैठता हो, बैठता ना भी अगर करीब से गुजरेगा भी तो गंदगी बदबू नाक में आएगी या नहीं आएगी? यकीनन आएगी ना। बस फरमाया गया यही मिसाल अच्छी और बुरी महफिल की है। इंसान जिस तरीके से अच्छी महफिल में बैठता है तो अच्छों के असरात उस पर आते हैं, इसी तरीके से इधर पड़ोस की मिसाल दी गई है कि वहां से खुशबू ऐसा आ रही है। ये गंदगी का ढेर उन गंदे लोगों को कहा गया है कि जिनके साथ बैठ करके इंसान खुद भी गंदा हो जाता है, उसकी आदतें खराब हो जाती है। इसीलिए हमें चाहिए कि अच्छों का माहौल इख्तियार करो, बुरे से बचो, जुआरी, शराबी, गंजेड़ी, ड्रग्स एडिक्ट, इन लोगों से बचो, इसलिए कि आज नहीं तो कल इनके असरात तुम पर भी आ जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपने इस्लाम कबूल किया ना तो आपके पास 40,000 दिनार थे। कितने थे? 40,000 दिनार थे। आपने खुशी में वो सब के सब जो है राय खुदा में जो है तकसीम कर दिया। और झूम कर बोले, हमारा और आपका हाल तो ये है कि कंजूसी करते हुए नजर आते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आते। दावे तो बहुत करते हैं, दावा तो बहुत करते हैं, मोहब्बत का दावा करते नहीं करते। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु से भी मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनके किरदार को अपनाने की कोशिश की है? इल्ला माशाअल्लाह, नहीं तो हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं ही नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और अपने सारे माल को राहे खुदा में तकसीम कर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, हमें भी चाहिए कि हम अपने माल को राहे खुदा में तकसीम करें। हालात तो इतने बदतर हो चुके हैं मुसलमानों के कि नेक काम में खर्च करने के लिए कंजूसी करते हुए नजर आते हैं। हत्ता के मस्जिद में, मदारिस में अगर चंदा डालते भी हैं तो फटी पुरानी नोट डालते हैं, 2, 5, 10 रुपए का चिंदा डालते हुए नजर आते हैं, जबकि 2-5 रुपए में तो आज चाय भी मैसर नहीं आती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, थोड़ा और आगे बढ़ के जाओ। बस्ती में अगर कोई गरीब है, उसके घर में राशन भरने के लिए आगे पीछे होते हो, उसके घर का खर्च उठाने के लिए आगे पीछे होते हो। लेकिन अगर तुम्हारे घर में शादी हो रही हो तो खुरापात में लाखों रुपए उठाने के लिए तुम आगे बढ़ते नजर आते हो। न जाने कितने खुरापात करते हुए नजर आते हो, कभी हिजड़े नचाते हो, कभी कोई महफिल सजाते हो, कभी कुछ करते हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो, फरमाया गया नाच नाच कर लेकर आओगे तो उम्र भर नचाती ही रहेगी। इसलिए ना करो ऐसे काम। मोहब्बत के दावे वलियों से करते हो, मोहब्बत के दावे जो है साहबा के करते हो कि हम साहबा से मोहब्बत करते हैं, सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते हैं। अगर वाकई तुम साहबा से मोहब्बत करने वाले होते, अगर वलियों से मोहब्बत करने वाले होते, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला से मोहब्बत करने वाले होते, तुम अपने माल को राह खुदा में खर्च करते हुए नजर आते, खुरापात करते हुए नजर नहीं आते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, न जाने कौन कौन सी रस्में मुसलमानों ने पाल ली है। अल्लाह रहम करे मुसलमानों के हाल पर। कई मुसलमान बच्चियां जिनके पास जो है शादी के लिए उनके वालिदैन के पास अखराजात नहीं है, आज भी घर में कुंवारी बैठी हुई है। अरे अल्लाह ने अगर तुम्हें माल दिया है तो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करो, इन बच्चियों पर जो खर्च करो। कहते हो ना लोगों से, हजरत दुआ कर देना, हजरत मेरे लिए दुआ कर देना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, काम ऐसे कर जाओ कि तुम्हें किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े कि मेरे लिए दुआ कर दो। किसी बच्ची के निकाह करा दो, उसके माँ बाप के दिल में दुआ निकलेगी, तुम्हें नहीं कहने की जरूरत नहीं
पड़ेगी, मेरे लिए दुआ कर देना। किसी के घर का राशन भरा दो, कसम खुदा की तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे लिए दुआ कर दो, उनके दिल से दुआ निकलती हुई नजर आएगी। किसी बीमार के लिए उसकी दवा का इंतजाम करवा दो, कसम खुदा की तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे लिए दुआ कर दो, बल्कि उनके दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकलती हुई नजर आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, आज इस महफिल में आए हो तो ये अहद करके उठेंगे कि सिर्फ हम दावा मोहब्बत का नहीं करेंगे, उसके साथ साथ हम मोहब्बत का पैगाम भी देते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से हमारे इस्लाम ने हमारे माल को, अपने माल को राह खुदा में लगाया है, अच्छे काम में लगाया है, हम भी उसी तरीके से अपने माल को अच्छे काम में लगाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, आपने देखा होगा मस्जिद में लोग अपने माल को लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते, है ना, अल्लाह जिनको तौफीक देता है वो लगाते हैं, और कुछ लोग कंजूसी भी करते हैं। अच्छा, मस्जिद में अपने माल को लगाते हैं ना, तो आप देखें कि जितने नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं ना, जितने नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, वो तमाम नमाजी का सजदे का जो सवाब होता है, नमाजियों के सजदे में कोई कमी नहीं होती, लेकिन जिसने उस मस्जिद के तामीर में हिस्सा लिया, अपने माल को लगाया, उन सबको इनका मजमूई सवाब दिया जाता है। बोले सुभान अल्लाह। अब एक पते की बात बताओ, हमारे और आपका सजदा क्या सजदा है ना, पता नहीं कबूल भी हुआ या ना हुआ। मस्जिद नबी माशाअल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। वहां सजदा किसने किया? हसनैन करीमैन ने किया, मौला अली ने किया, उस्मान जुन्नूरैन ने किया, उमर बिन खत्ताब ने किया, है ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किया, अशरा मुबशरा ने किया, सहाबा ने किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दुआओं, आपको पता है ये मस्जिद जब तामीर की जा रही थी, इसके लिए जब जगह खरीदी गई तो इसके लिए 80,000 दिनार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने माल से वापस ये जगह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 80,000 दिनार में अपने माल से खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, यही आका अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि सबसे ज्यादा अगर किसी के माल से दीन को नफा पहुंचा है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, माल तो माल, जान का नजराना भी पेश करने के लिए आप कभी पीछे नहीं, कभी पीछे नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवान हजरत अली करमल्लाहु वजहु करीम से असहाब ने पूछा कि अली, तुम तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन? सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन? उनको ये गुमान था कि अली कहेंगे मैं, क्योंकि शेर खुदा है ना, अली शेर खुदा है ना। लेकिन अब सुनो, हजरत अली करमल्लाहु वजहु करीम फरमाते हैं कि हमने सबसे ज्यादा हिम्मत वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। आप फरमाते हैं कि बद्र के मैदान में जब आका अलैहिस्सलाम के लिए खेमा लगाया गया, जिस खेमे के नीचे आका अलैहिस्सलाम को जो है आराम फरमाने के लिए रखा गया, अब उसकी पहरेदारी, उसकी हिफाजत की बात आई, इसलिए कि जंग में यही होता है कि सबसे पहले कमांडर इन चीफ को मारा जाता है, इसलिए कि जब चीफ मर गया तो पूरी जंग का नक्शा बदल जाता है। तो जाहिर सी बात है हमला भी तो आका की जात ही पर होगा, तो वहां कौन खड़ा रहेगा? अब ये कश्मोकश में थे, इतने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हुए नजर आए। आप फरमाते हैं कि यहाँ किसी को खड़े रहने की जरूरत नहीं है, मैं तन्हा ही इसके लिए काफी हूं। बोले सुभान अल्लाह। बोले मेरे आका तक किसी को आने से पहले मुझसे टकराना होगा। जब तक अबू बकर जिंदा है मेरे आका को कुछ हो नहीं सकता। ये दीवाने है यार, ये दीवाने। ऐसा होता है इश्क, ऐसा होता है इश्क। एक हम और आप है, इश्क के दावे करते हैं और उसमें खोखले नजर आते हैं। चेहरे देखो तो खाली है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, सुन्नत नहीं है, ना सुन्नत पर कभी अमल करते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो ये सुन्नत बहुत अहम चीज है, बहुत अहम चीज है। एक सुन्नत जब उसके मुताबिक कोई चीज आ जाती है ना तो सुन्नत खत्म हो जाती है, फिर लोग उस पर अमल करना छोड़ देते हैं। आप देखिए आज मिसवाक करते ही माशाअल्लाह, है ना,
तकरीबन तो खत्म हो गई। क्या हो गया? आजकल लोग क्या करते हैं? पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, है ना? ब्रश करेंगे, मिसवाक का इस्तेमाल खत्म कर दिया। ये सुन्नत खत्म हो गई। इल्ला माशाअल्लाह लोग इस पर अमल करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि आज लोग बोतल में पानी पीते हैं। फ्रिज में बोतल रखी है, रास्ते में प्यास लगी तो बोतल खरीद लिए, गिलास गायब। अब वो सुन्नत चली गई। इल्ला माशाअल्लाह लोग अमल करते हैं, तो ये सुन्नत भी चली गई। तो मौका है, अल्लाह ने मौका अता फरमाया, सुन्नतों पर अमल करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म होने लगा और कुफार मक्का ये आका अलैहिस्सलाम की जो है जान के दुश्मन बन गए, तो आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ऐ अबू बकर, वक्त आएगा हमें हिजरत करनी होगी। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सुने तो अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस सफर में आपका रफीक, आपका साथी कौन होगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथी तुम ही रहोगे। जब आपने सुना तो आपकी आंखों से अश्क जारी हो गए, आप रोने लगे। तो आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अबू बकर, तुम दुनिया ही में मेरे रफीक नहीं हो, तुम महशर के मैदान में भी मेरे साथी हो, तुम कौसर पर भी मेरे साथी रहोगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचे, अब दस्तक भी ना दी थी, आपने दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोल दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, मैंने तो दस्तक भी ना दी, तुमने दरवाजा खोल दिया। हज़रत आका, जिस दिन से आपने कहा कि एक रात हिजरत करनी होगी, आका वो रात है और आज का दिन है। अबू बकर ने अपनी पुष्ट को जमीन पर नहीं लगाया, रात जाकर गुजार दी है। आका, सारी रात इसी इंतजार में रहता हूँ, मैं जाने कब मेरे आका तशरीफ ले आएंगे और मुझे दरवाजा खोलने में काफी हो जाएगी, इसी इंतजार में बैठा रहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता, ऐ आका, हवा का झोंका आता, जोर से आता, मैं समझता आप आ रहे हैं, दरवाजा खोलता और कोई नजर नहीं आता, फिर दरवाजा बंद करके बैठ जाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रात में जागना अबू बकर के लिए फर्ज या वाजिब था? नहीं ना, मोहब्बत है, फर्ज या वाजिब नहीं था, लेकिन हम पर और आप पर नमाज फर्ज की गई है। जरा सोचो तो सही, वो मोहब्बत में रात में सो नहीं रहे हैं और हम मोहब्बत का दावा करते हैं और फर्ज नरम हिस्से पर सोकर गुजार देते हो, नमाज तो तर्क कर देते हो और उसके बाद कहते हो कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, मोहब्बत करने वाले तो ऐसे होते हैं कि नबी को क्या चीज पसंद है, किस चीज से नबी राजी होंगे, उसका ख्याल रखा जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या हमने नमाज पढ़ के आका अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचाने की कोशिश की है? इल्ला माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा, जो मुसलमान जानबूझकर बिला उज़्र शरई नमाज को छोड़ता है, वो अल्लाह की अमान से निकल जाता है। अल्लाह। अब अल्लाह की अमान से निकलना क्या है पता है आपको? लफ्ज बहुत आपको हल्का लग रहा है, लेकिन ये कोई हल्का लफ्ज नहीं है। जो अल्लाह की अमान में रहा वो आबाद रहा, और जो अल्लाह की अमान से निकल गया उसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, जरा देखो तो सही, अल्लाह की अमान में मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम है, अल्लाह की अमान से बाहर फिरौन नजर आता है। आप सोचो तो सही, फिरौन को जब पता चला है ना अल्लाह की अमान में बंदा आता है ना, तो दुनिया पूरी ताकत लगा ले, पूरी ताकत लगा ले, पूरी ताकत लगा ले दुनिया के उस बंदे को नुकसान पहुंचावे, कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कि वो अल्लाह की अमान में है। फिरौन है ना, फिरौन जब इसको नुजूमिया ने बताया
کہ ایک بچہ پیدا ہوگا, ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو پلٹ دے گا, تیری بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا. وہ اسی سال پیدا ہوگا. اب اس نے کیا کیا کہ اس سال کوئی شادی نہیں کرے گا, کوئی اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا. جو عورتیں حاملہ تھیں ان کو قید کر دیا, عورت مرد کو جدا کر دیا, قید میں ڈال دیا, اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیتا, جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیتا. صرف اس لیے کہ وہ لڑکا جو آئے گا اس کو آنے نہیں دینا ہے. آج بھی مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں, لگے ہیں ختم کرنے کے لیے. ارے مٹ گئے مٹانے والے, تو آج یہ بھی مٹ جائیں گے انشاءاللہ, یہ بھی مٹ جائیں گے. اسلام کو نہ کسی نے مٹا سکا ہے اور نہ کبھی مٹے گا. اسلام ہمیشہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے, لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی اللہ نے انہی کی ہاتھوں میں شمشیر دے دی اور وہ کھڑے ہو گئے پاسباں بن کر, وہ کھڑے ہو گئے حفاظت کرنے کے لیے. ایک وقت آئے گا یہاں پر بھی آج جو اسلام کو مٹانے پر تلے ہیں یہ بھی جمع پڑیں گے انشاءاللہ, وقت آئے گا انشاءاللہ. تو لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, اللہ کی امان میں آنا ہوگا. اور اللہ کی امان کیسے ملے گی, اس کے حبیب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے. آوارہ گردی کرنے سے نہیں ملے گی, نمازوں کو چھوڑنے سے نہیں ملے گی. یہ بات یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی امان میں آؤ. فرعون نے تدبیریں لگا دی موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے, یہ لڑکا پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے. اللہ جتنے بچے پیدا ہوتے ان کو مار دیا جاتا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کو جنم دیا تو آپ فکر مند ہو گئی کہ اب کیا ہوگا, فرعون کے فوجی آئیں گے اور اسے مار دیں گے. رب نے الہام فرمایا قلب پر کہ گھبراؤ نہیں, اسے ایک صندوق میں ڈال کر کے جو ہے دریا میں ڈال دو. دوسری پر ایک مرتبہ رب نے جو ہے الہام فرمایا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر کے دریا میں بند کر کے دریا میں ڈال دو. دریا میں ڈال تو دے, لیکن بچے کی جدائی کا غم ہے نا, ماں تو ماں ہوتی ہے, بچے کی فکر. تو رب فرماتا ہے غم نہ کرو, قرآن شریف پڑھو, فکر نہ کرو, ہم تمہارے بچے کو تمہارے پاس پھیر دیں گے. سبحان اللہ. اب یہ صندوق بہتا ہوا جو ہے نا نبی تھے, وہ نبی کہاں نکلتی تھی, فرعون کے جو ہے باغات تھے نا, باغات سے ہوتی گزرتی تھی. اور جب یہ وہاں سے صندوق گزرا, فرعون اور اس کی عورت جو تھی وہ وہیں بیٹھی تھی. اسی عورت نے کہا کہ دیکھو یہ صندوق ہے, جاؤ لے آؤ, پتہ نہیں کیا ہوگا اس صندوق کے اندر. فرعون نے اپنے فوجیوں کو بھیجا, وہ گئے اور جا کر کے جو ہے اس صندوق کو لے کر آئے. اور لانے کے بعد جب صندوق کھولا گیا تو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا نورانی چہرہ نظر آیا. اب اس چہرے کو دیکھتے ہی جو ہے فرعون کی عورت نے کہا کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون کہتا ہے نہیں, یہ وہی بچہ ہے, یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے میری حکومت کو زوال آنے والا ہے. اس کی عورت نے کہا کہ نہیں, یہ پتہ نہیں ندی کتنے دور سے بہ کر آتی ہے, کہاں سے بہ کر آ رہی ہوگی, یہ وہ بچہ نہیں ہے اور ہمارے کوئی لڑکا بھی نہیں ہے, اسے ہم پال لیتے ہیں. اور اللہ کی قدرت کہ جو مارنے پر تلا تھا اسی کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش عطا فرما دی. تو جو اللہ کی امان میں آتا ہے نا, دشمن بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہو نا, آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ کی امان میں آنا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو. اور جو اللہ کی امان سے نکل گیا, فرعون کا کیا حال ہوا, اللہ اکبر, دریا میں ڈبو دیا, دریا میں ڈبو کر مارا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں, اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی امان میں ہے, نمرود امان میں نہیں ہے. کیا حال ہوا نمرود کا, لنگڑے مچھر سے مروایا گیا. کس سے مرایا گیا, لنگڑے مچھر سے. وقت کا بادشاہ, خدائی دعویٰ کرنے والا, کس سے مر رہا ہے, ایک لنگڑے مچھر سے مر رہا ہے. میرا رب اس پر قادر ہے. آج بھی جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, میرا رب قادر ہے. لوگوں نے دیکھا, لاک ڈاؤن دیکھا,
है ना, देखा ना, एक ऐसा जरासीम जो नजर भी नहीं आ रहा था, अल्लाह ने दिखाया, मेरी कुदरत का मुशाहिदा कर लो। तो नमरूद को लंगड़े मच्छर से मरवाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको आग में डालने की तैयारी की जा रही थी, बताया आपको कैसी आग लगाई गई थी कि आसमान के ऊपर जितनी बुलंदी से परिंदा उड़ता है ना, अगर परिंदा उड़कर जाता जलकर आग में गिर जाता, ऐसी आग। अल्लाह आपको जब उसमें फेंकने के लिए एक आम लफ्ज़ में बोलूं, गुलेल है ना, गुलेल समझते हैं, खींचो और फेंक दो। तो उसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखा गया और खींच रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, तो खींचे ही नहीं जा रहा। कई फौजी मिलकर ताकत लगा रहे, खींचे ही नहीं जा रही, खींच रहे हैं। इतने में शैतान इंसानी शक्ल में आता है और कहता है नमरूद को कि नमरूद तेरी सारी फौज मिलकर भी अगर इसे खींचेगी ना, इस गुलेल को, तो नहीं खींच पाएगी। तो पूछता ऐसा क्यों? तो बोले इसे फरिश्तों ने थाम रखा है। किसने थाम रखा है? फरिश्तों ने, अल्लाह की अमान में। बोले सुभान अल्लाह। किसने है? अल्लाह की अमान में है कि नमरूद तेरी पूरी फौज मिलकर भी इसको खींच नहीं सकती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में नहीं डाल सकती। तो बोले आप क्या करो? बोले एक काम कर, एक औरत को नीम बरहना लाकर यहाँ खड़ा कर दे। जब वो औरत नीम बरहना यहाँ पर आकर के खड़ी हो जाएगी तो फरिश्ते मारे शर्म की हया के फौरन यहाँ से चले जाएंगे, और जब फरिश्ते चले जाएंगे तो उसके बाद तुम इन्हें उठाकर आग में फेंक देना। अल्लाह अकबर। वैसा ही हुआ, एक औरत को नीम बरहना लाकर खड़ा किया गया, फरिश्ते मारे हया के छोड़कर चले गए। अल्लाह अकबर। वो लोग जिनकी औरतें बेपर्दा रोड पर घूमती है, जरा सोचो तो सही, क्या उनके घर में रहमत के फरिश्ते आते होंगे? हरगिज़ नहीं। फैशन बना लिया है औरतों ने, पर्दे में आ गई तो बोले कैद हो गई है। कैद और रिहाई क्या है, कैद और आजादी क्या है, ये तो जब कब्र में जाएंगे उस वक्त पता चलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है। जरा सोचो तो सही, वो फरिश्ते जो मासूम जो है सिफत है जिनकी, उन्होंने उन नीम बरहना औरतों को देखा तो मारे शर्म के बदकर चले गए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, और सुनो, फरमाया गया कि उमर ढय्यूस है जिसकी औरत गैर महरम के साथ बेपर्दा बातें करती है, हंसी मजाक होती है और उसका मर्द उसे रोकता नहीं। अब वो मर्द भी सोच ले कि वो किस कैटेगरी के हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपनी माँ बहनों से कि अपनी घर की बरकतों को ना उठाओ, अपने घर से रहमत के फरिश्तों को ना लौटाओ, पर्दे में रहा करो, पर्दे का एहतमाम करो। इस्लाम बड़ा पाक बात मजहब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, आप सिर्फ दावाए मोहब्बत ना करें बल्कि उस तकाजे को भी पूरा करें। अब देखिए क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अमान में है, नमरूद अमान से बाहर है। फेंका गया, इतनी बड़ी आग, दुनिया देख रही है, बहुत बड़ी आग है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो रात भी मिलना मुश्किल है, लेकिन जब गए तो आग, सुभान अल्लाह, कुल्ला या नारो कुली बर्दम व सलामुन अला इब्राहिम, कि आग ठंडी हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, और वो आग ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, आग गुलजार हो गई, आग बाग में तब्दील हो गई। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, ये है रब की अमान, ये रब की अमान है। और जो रब की अमान से निकल गया, नमरूद लंगड़ा मच्छर उसकी नाक में घुस गया। बहुत बड़ी जो है तफसीर है इसकी, नाक में घुस गया। और हाल ये हुआ कि नमरूद के सर में दर्द रहता, नमरूद के सर में दर्द रहता। अब इलाज क्या बताया गया? हकीम इलाज कर करके परेशान हो गए कि इसके सर पे हल्का हल्का डंडा मारते रहो, डंडा मारते रहोगे तो मच्छर इसके भेजे को नहीं खाएगा। मच्छर जब भेजा खाता है तो इसके सर में दर्द होता है, तो इसके सर में डंडा मारते रहो। अब बात अलग अलग रिवायत है, किसी रिवायत में आए कि जिसको रखा गया था उसने मारे कंटाल के इसके सर पर जो है जोरदार डंडा मारा और उसका काम तमाम हो गया। अब कैसे मरा? एक लंगड़े मच्छर के थ्रू मरा।
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, अल्लाह की अमान में आओ, अल्लाह की अमान में आओ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब की अमान में, रब की अमान में। मैंने बताया ना कि आपकी शान बड़ी अरफा वाला है, हमारी जबान नाकिस है कि कुछ बयान कर सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, आपकी आदत शरीफा थी कि आप जब किसी गुलाम को देखते, कमजोर गुलाम जिसके बदन में ताकत ना होती, तो आप उसे खरीद कर आजाद कर देते। बोले सुभान अल्लाह। आपके वालिद जो अबू कहाफा है वो कहते कि अबू बकर, अब्दुल्ला ये क्या करते हो? अगर करना ही है आजाद तो किसी अट्टे कट्टे को करो, किसी तंदुरुस्त को करो, सेहतमंद को करो, ताकि कल के दिन वो तुम्हारे कुछ काम आए। तो आप फरमाते कि अब्बा जान, मुझे जो मैं ये आजाद कर रहा हूं ना, इसकी दुनिया में इनसे कोई हाजत नहीं है, मुझे तो इसका अज्र मेरे रब से चाहिए। ये अबू बकर है, मुझे इसका अज्र अपने रब से चाहिए। और सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम फरमाते हैं कि अबू बकर के घर में मैं ऐसे आता जाता जैसे मैं अपने घर में आता जाता हूं, बिला झिझक, बिला रोक टोक आना जाता। और आप फरमाते कि अबू बकर के माल को मैं ऐसे खर्च करता जैसे वो मेरा खुद का माल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आखिरी बात, बस आखिरी बात। जंगे तब्बूक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि माल की जरूरत है, सब अपना अपना माल लेकर आए। और उस वक्त इतना तंगी का दौर था कि साहबा एक खजूर पर गुजारा करते, इतना तंगी का दौर था वो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इस ख्वाहिश में रहते हमेशा कि किसी तरीके से मुझे मौका मिल जाए और मैं अबू बकर से नेकी में आगे बढ़ जाऊं, हमेशा इस कोशिश में रहते हैं। यहाँ तो आज इंसान कंपटीशन करता है दुनियावी मामले में कि मेरे पास माल ज्यादा हो जाए, मेरा बंगला बड़ा हो जाए, मेरा मकान बड़ा हो जाए। बाजू वाले को देखकर हसद करते, ऐसा ना करो, हसद ना करो। अल्लाह ने जिसको दिया है उस पर राजी रहो, हसद ना करो। तो नहीं राजी रहोगे ना तो याद रखो ये अल्लाह से दुश्मनी ले रहे हो, इसलिए कि उसको जो भी अता किया है वो अल्लाह ने अता किया, तो तुम जल रहे हो उससे। ना जलो, किसके इस पर जल रहे हो? आप अल्लाह की अता पर जलते हो, ना जलो, कसम से ना जलो, ऐसा ना करो। अब यहाँ पर देखिए आप, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त आप कहते हैं कि मेरे पास बहुत माल था, तो मैंने दो हिस्से किए, एक घर वालों के लिए छोड़ा और एक लेकर आया। और दिल में ये सोच रहा था कि आज तो मैं नेकी में अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा, आज तो नेकी में मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन वो दीवाना तो कुछ और ही है, दीवाने की बात ही निराली है। क्या किया आपने? जितना था सब बटोर लिया, यहां तक के घर वालों से कहा कि सिर्फ एक लिबास पहनो। अब घर वाले परेशान कि लिबास भी हमारा ले जा रहे हैं, लिबास। तो जब आप टाट का लिबास पहनकर सामने आए ना, फरमाया कि तुम्हारे लिए तो एक लिबास छोड़ा हूं, मेरे जिस्म पर तो टाट का लिबास पहना हूं। टाट का लिबास बबूल के कांटे से रोका हुआ, सिया हुआ, अब लेकर के पहुंचे आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में। सुभान अल्लाह, अपने माल को लेकर पहुंचना, जिब्राइल अमीन का हाजिर होना। आते हैं जिब्राइल अमीन, यहाँ पर सिद्दीक अकबर हैं, आका की बारगाह में सारा माल पेश किया। आका फरमाते हैं अबू बकर, घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ आए हो? तो फरमाते हैं परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल पर, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल पर। यानी आप है ना आका, आप है तो मुझे किसी चीज की कोई हाजत नहीं है। अब जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सिद्दीक को सलाम पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह, कौन भेज रहा है सलाम? रब्बे कदीर। किसको? अबू बकर को। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर जो है अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि पूछो अबू बकर से कि वो अपने रब से राजी हैं। सुभान अल्लाह। कौन पूछ रहा है यार? रब पूछ रहा है, अबू बकर से पूछ रहा है। अब जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर, अल्लाह तुमको सलाम भेज रहा है
और पूछ रहा है कि तुम अपने रब से राजी हो। अबू बकर में वजदानी कैफियत आ जाती है, वजद में आकर कहते हैं अल्लाह मैं अपने रब से कैसे नाराज हो सकता हूँ, अल्लाह मैं अपने रब से कैसे नाराज हो सकता हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, ये शान है सैयदना अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, लोग कहते हैं ना कव्वाली में पढ़ते हैं दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, नहीं ये नहीं पढ़ना, कभी ना पढ़ना, ये शियाओं का बनाया हुआ है सुन्नियों को बहकाने के लिए। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर नहीं है, सिद्दीक दा पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर। इस फार्मूले को, इस चीज को हमेशा याद रखना। पहला नंबर किसका है? अबू बकर सिद्दीक का है। ये अव्वल खलीफा है मुसलमानों के। लोग उम्रा करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में सिद्दीक के अकबर को अपने मुसल्ले पर खड़ा दिया और खड़ा करके ये बता दिया कि मेरे पास इस उम्मत जाने के बाद जो है, इस उम्मत की बागडोर संभालने वाला जो होगा वो मेरा सिद्दीक होगा। कोई और होता तो उसे खड़ा कर देते। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, 22 जमादिल उखरा, ये सैयदना अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विसाल की तारीख। हमें चाहिए कि इस तारीख को फातिहा पढ़े, आपकी बारगाह में नजर और नियाज करें, जो भी हमारे पास हो। अगर कुछ ना हो तो हमारे घर में जो भी पका है उसी पर फातिहा दिलाए और आपकी बारगाह में नजर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।